Hello, great minds. Hope you are enjoying learning maths with Anjana. Yes, so Anjana is back with you once again with your maths book for grade 6. And today we are going to start with a new chapter. What's the name of the chapter? This is chapter number 9, Data Handling. So let's quickly do a small warm up. So there's an activity for us. We'll be first doing it. During summer holidays, 5 students read some books. So there were 5 children. उन बच्चों ने कुछ books read की. And the number of books they read is shown in the pictograph with each book representing 10 books. अब यहाँ पर pictograph show कर रहा है और विकास ने कितनी books read की? Then Arnav, Apeksha, Asif and Rashmi. And every book means 10 books. So you are going to see Vikas ने कितनी books read की? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 6 times 10. क्या आंसर आएगा? 60. And similarly, Arnav ने कितनी books read की? That is 3 times 10. It becomes 30. Apeksha, 20. Very nice. And Asif, 50. What do you say about Rashmi? Perfect. 4 multiply 10. क्या होता है? 40. So, who read the most number of books? सबसे ज़्यादा books किसने read की? Yes, he was Vikas, lover of books. Who read the least number of books? किसने सबसे कम books read की? यहाँ पे check करेंगे. We get Apeksha. And उसके बाद third question है, name the students who read more than 20 books. 20 से ज़्यादा किसने read की? तो 20 अपेक्षा ने read की और बाकी सब ने 20 से ज़्यादा read की. आपका आंसर होगा विकास, अर्नव, आसिफ and Rashmi. Right. And then we have who read more books? आसिफ और रश्मि. तो रश्मि ने 40 बुक्स रीड की और आसिफ ने 50 बुक्स रीड की. किसने ज़्यादा की? Yes, of course, आसिफ ने. Right. And how many books did the students read all together? सबने मिलकर कितनी बुक्स रीड की? 60 plus 30 is 90 and 20 more 110 and then we have 50 plus 40 90 more. तो total books हमारी आ गई 200. So we will say 200 books. Got it? Let's move further and we talk about what is data. क्या होता है data? आओ समझते हैं. Mr. Sharma has done a survey in a reputed school to find out the favorite game of the students. सब बच्चों के different games, favorite games होते हैं. तो Mr. Sharma ने स्कूल में एक सर्वे किया और हर स्टूडेंट से पूछा कि किस बच्चे को कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता है. एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 12 आर हियर. तो हमें पता चला कि 205 स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल पसंद है और 215 स्टूडेंट्स लव वॉलीबॉल. देन देयर आर 600 चिल्ड्रन जिनको फुटबॉल पसंद है. दे आर फुटबॉल लवर्स. And 560 love to play cricket. There are 156 children who love table tennis and still another 264 love to play badminton. तो ये हमें data collect किया और उसके बाद from the above table we can easily visualize the following information. The number of students present on the day of the survey and which game has got मैक्सिमम पॉपुलैरिटी. तो जब हम इस सर्वे को देखेंगे तो इनको ऐड करके हमें पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट सर्वे वाले दिन कितने प्रेजेंट थे और सबसे फेवरेट गेम कौन सा है. यस, ऑफ कोर्स इट इज फुटबॉल. नाउ सो दिस डेटा इज रियली वेरी हेल्पफुल टू एनालाइज सर्टेन थिंग्स. व्हाट इज डेटा? The original form of the data is called raw data. जो हम originally collect करते हैं different बच्चे से different sources से
जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको गैदर करते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, runs scored by 10 players are 45, 37, 63, 29, 7, 8, 14, 49, 93 and 10. So what is this? ये raw data होता है. Got it? Now, like this, we can also, looking on the raw data, we can also get the information which game has got minimum popularity, what is the fraction of number of students who like badminton. तो एक बार जब हमें डेटा कलेक्ट कर लिया तो उस डेटा को देखकर हम अपनी बहुत सारी क्वेरीज इमीडिएटली सेटिस्फाई कर लेते हैं. The initial step for any investigation is collection of data. It may be in the form of numbers, it may be in the figures, in the facts, or even in the form of symbols. And the information needed or the data collected, it must be relevant to the need. And the collection of information in the form of numerical figure is called data. So what is data? The literal meaning of data is known facts or the facts that are collected to draw some inference. That means you come to certain conclusion. एक बार raw data collect किया और उससे फिर हम किसी conclusion पर आते हैं जिससे हमें information मिलती है, right? Now let's talk about what are different types of data. तो दो टाइप के डेटा होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है? द डेटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, कि जहां से वो डेवलप हो रहा है वहीं से हमने डेटा डायरेक्टली कलेक्ट किया. एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है? कि हमें डेटा चाहिए लेकिन हमने किसी सेकेंडरी तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है द डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल. जैसे हमने कोई डेटा लिया और वो डेटा डायरेक्ट सोर्स पर ना जाके किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से पिक किया जो ऑलरेडी एक सर्वे किसी ने किया था, तो वो डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाता है, राइट? नाउ वी मूव फर्दर एंड आई टेल यू दैट data can be classified as primary and secondary type of data, and the data collected directly for the first time by the observer is called primary data. But the data that is collected from internet, from newspaper, from TV, and we work on that data, then that data is secondary data for us. Now, use of data collection. जब हम data collect करते हैं तो क्यों करते हैं? So, when you preserve data, we need to collect the data, then we organize them. Organize का मतलब हम उस data को arrange कर रहे हैं and record them. किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? जिससे हम उससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके. सो आई विल गिव यू द एग्जांपल. टेकिंग अटेंडेंस बाय द टीचर इन द क्लास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स प्लेड बाय चिल्ड्रन. एंड यू कैन आल्सो टॉक अबाउट पॉपुलर कार ब्रांड्स. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डेटा कलेक्शन. नाउ व्हेन यू कलेक्ट द डेटा, उसके बाद एक चीज आती है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, जिससे हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके उस डेटा से. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स. जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें पता चला कि सबसे फेवरेट डिश कौन सी है क्लास में बच्चों की, सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, क्या इस क्लास में मैक्सिमम बच्चों का बर्थ कौन से मंथ में हुआ है. तो एक बार हमने जब रॉ डाटा कलेक्ट कर लिया और उसको हम एनालाइज करते हैं तो हम डिफरेंट आउटपुट्स पर पहुंचते हैं. तो जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं हम उससे डिफरेंट आउटपुट्स पर पहुंचते हैं. नाउ लुक हियर, द जजेस हैव फॉलोइंग grades 2, 4, 5, 1, 3, 2, etc. Does it make any sense? No sense. समझ ही नहीं आ रहा कि आपका क्या क्वेश्चन है, क्या बात हो रही है ना? अगर हम इस डेटा को मीनिंगफुल बोलेंगे तो हम रॉन्ग बोलेंगे, ये डेटा हमें मीनिंगफुल नहीं लग रहा. सो टू मेक द डेटा मीनिंगफुल वी हैव टू अरेंज द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म. कैसे? हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के नेम लिखे
और उनकी ग्रेड्स लिखे। ग्रेड 2 का स्टूडेंट है ये, ग्रेड 4 का, ग्रेड 5 का। दैट मीन्स यहाँ हमने डेटा को ऑब्जर्व किया और हमने एकदम से समझ लिया कि यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी ग्रेड में पढ़ता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा बिकम्स इजियर जब हम डेटा को या तो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं या हम डेटा को पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक डेटा पूरे कलेक्शन में कितनी बार आ रहा है, राइट? सो लेट्स सी द एग्जांपल। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम वांट्स टू नो द रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स of both the teams in the previous match. He will call each and every player and note down the runs. तो यहाँ पर हमने सारे runs को note down किया, right? And this way, the recording of data does not help him to answer the questions like what is the maximum score and how many players made half century. Then how many players scored 75 runs or more than 75 runs? Then difference between the maximum and minimum runs scored. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देखते ही प्रॉम्प्टली हमें नहीं मिल रहा। तो ऐसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। दैट मीन्स छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। So this is a better way of writing the data collected. अब हमने छोटे से स्टार्ट किया and increase होते होते this is the maximum score, right? And it is going to help you to answer the question, what is the maximum run scored? यहाँ से मिला. And how many players made half century? So immediately we will get the answer, 2 players made half century, right? And this way we can get the answers. Now, when the number of observation is large, to minimize the number of errors and to make the tabulation easier, we can use telemarks. तो telemarks क्या होता है वो अभी हम सीखेंगे. In the telemark method, we draw 3 columns. पहला कॉलम होता है डेटा का, सेकंड कॉलम होता है जिसमें हम टेलीमार्क्स बनाते हैं और थर्ड कॉलम होता है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी आती है. So this is how we draw the telemark. यहाँ पर हमने लिखा 20 runs और कितने प्लेयर्स के 20 runs हैं, यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 और ये जो डायगोनल कट होता है ये डायगोनल कट रिप्रेजेंट करता है 5 को, राइट? तो हमने इमीडिएटली पता चला कि ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. 25 रन 2 प्लेयर्स के बने, 35 runs 2 प्लेयर के, ऐसे ही 38 runs 3 प्लेयर के. And this way you collect the data. Now I'll tell you the singular form of data. What is the singular form of data? We call it datum and data is the plural form. But आजकल हम बहुत generally data ही word use करते हैं. And tabular form is a form where you can find the information and data in rows and column method, right? तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बनाए एंड 3 कॉलम्स बनाकर अलग अलग रो में हमने अपने डेटा को मेंशन किया. अब उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स. इसको हम एक और वर्ड से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटिंग इवेंट. इसका मतलब 20 रन कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पता चली 5. Got it? 25 रन की फ्रीक्वेंसी है 2. Got it? एंड उसके बाद what is tally? Tally, ये जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं इनको हम टेली मार्क्स बोलते हैं. एंड देयर इज अ रूल कि 1, 2, 3, 4 टेली ड्रॉ होने के बाद जो 5th होती है, जैसे स्टिक्स का बंडल बना देते हैं ऐसे 5 का ये बंच बन जाता है. तो अगर हमने ऐसे लिखा तो इसको इमीडिएटली काउंट कर जाएंगे 5 plus 4. So this becomes 9. Got it? And now we move further and we will be talking about representation of data. So children, there are many ways to represent numerical data. जब आपको data number की form में मिलता है
तो आप उसको बहुत डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पिक्टोरिकली सच एज बाय यूजिंग पिक्टोग्राफ, हम बार ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, राइट. नाउ दीज ग्राफ्स हेल्प इन द सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब सबसे पहले बात करेंगे पिक्टोग्राफ की. तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? इट इज अ वे of representing the data using pictures or symbols to match the frequency of different information or event. तो अगर हमने बात की हम डेटा को कैसे रीड करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको सीखने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. In a class of 25 children, absentees in a particular week was shown by a pictograph which is shown here. तो हम आपको यहाँ पिक्टोग्राफ दिखाते हैं और इस पिक्टोग्राफ में हमें पता चला Monday how many children were absent? 3. And on Tuesday 5 were absent. And after that on Wednesday 0, no child was absent. On Thursday we have 9 children absent, and similarly 7 were absent on Friday, and after that on Saturday we had 10 students absent. अब पिक्टोग्राफ को देखकर हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. How many children were absent on Friday? Yes, you gave the right answer. It was 7. Then we have how many children were absent on Saturday? Present on Saturday. Now we could say 15 were present on Saturday because total children in the class were 25, and यहाँ पर 25 में से 10 absent हुए, so we immediately come with the answer that 15 children were present on Saturday. Then we come to next question, on which day were no one absent? जल्दी से देख कर बताएंगे कौन सा दिन जब कोई एब्सेंट नहीं था? It was Wednesday. So we say Wednesday there were no child absent. Next question है, on which day were there maximum absentees? तो टेबल से देखकर हमें पता चला कि सैटरडे को maximum absentees थे. So we write down on Saturday there were maximum number of absentees. एक और क्वेश्चन करते हैं. Look at the next example. In the park, Gaurav collected the information about the colors of cars on a particular day. And this is the information. So, red color cars are 45, black is 105, then white is 75, green is 60, and others is 30. And the story doesn't end here. We have to draw the pictograph. और उस पिक्टोग्राफ के लिए हमें इतनी सारी कार्स नहीं बनानी. हमें स्केल दिया है 1 car means 15 cars. तो फर्स्ट टाइम आपको रेड कलर को रिप्रेजेंट करना है, तो 45 को 15 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 3. सो वी आर मेकिंग 3 cars. Similarly, black. So can you say the table of 15? 15 one time is 15, 30, 45, 60, 75, 90 and 105. 15 7 time is 105. इसलिए हमने यहाँ पर 7 cars draw कर दी. Then we come at 75. So we know 15 5 time is 75. White cars को represent करने के लिए हमने यहाँ पर 5 cars draw की. And for green we will draw. We are going to divide 60 by 15 and हमें 4 मिला, तो हमने यहाँ 4 cars draw कर दी. And others में 30 है, कोई बात नहीं, 15 को से 30 को divide करेंगे and we get 2. So we are going to draw 2 cars here. Got it? Now next is bar graph. तो bar graph क्या होता है? Bar graph is a chart जिसमें हमारे rectangular bars होते हैं and these are of equal width and proportional to the values that they represent. Bars can be horizontal or vertical with equal spacing in them and it is also called column graph. अब हमने हमेशा ध्यान करना है कि जब भी हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो बार ग्राफ बनाते टाइम हम जो बार्स रेक्टेंगुलर बार्स बनाएंगे उनकी विड्थ हमेशा सेम होनी चाहिए.
So to draw a bar graph, we draw two mutually perpendicular, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, they are called mutually perpendicular lines on a plain paper. The horizontal line is called the x-axis. इस वाली लाइन को हम बोलते हैं x-axis और इस लाइन को बोलते हैं y-axis. Now, if the columns drawn on the horizontal line on this x-axis, the scale is on the y-axis. यहाँ पर scale बनेगा. और अगर यहाँ पर हमने bars बनाए तो यहाँ पर scale बनेगा. Now, for drawing the bar graph, we have to keep these things in mind. हमेशा ध्यान रखना है कि जो width होती है कॉलम की बार की वो हमेशा पूरे बार ग्राफ में इक्वल width होगी, फर्स्ट रूल. और उन बार्स के बीच का गैप भी हमेशा इक्वल रहेगा. सो गैप बिटवीन द बार्स शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड बार्स में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. एंड रिमेंबर टू चूज अ सुटेबल स्केल फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द बार्स. ऐसा नहीं हो कि आपने स्केल सुटेबल नहीं लिया और आपकी बार्स बहुत लंबी लंबी बन रही हैं जो आपके पेपर से भी बाहर जा रही हैं. ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है. नाउ वर्टिकल बार्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव अ बेटर लुक. तो हमारी हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारी वर्टिकल बार्स बने डिपेंडिंग ऑन द स्केल. गॉट इट? एंड टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ, सुटेबल स्केल has to be decided on the either axis. क्योंकि जब हम स्केल लेंगे उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी बार्स की लेंथ कितनी होनी है. नाउ देन बार ग्राफ फॉर द सेल ऑफ शूज इन द शॉप नंबर 4. सो हियर what we are going to do, let's see the example. The following bar graph shows the number of students in each class of the school. So study the graph and answer the question that follows. So what is given? हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्या क्या क्वेश्चंस हैं? How many students are there in class 6? Then how many more students are there in class 9? Then in class 8? Next question is which class has minimum number of students and what is the difference between the maximum number of students and the minimum number of students. So this is the graph. यहाँ पर सबसे पहले हमने ग्राफ में ऑब्जर्व किया कि ये x एक्सिस है और x एक्सिस में हमें बार्स दिए हुए हैं और उन बार्स पे हमने क्लासेस ऑब्जर्व की. These are the classes. और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किए. तो फर्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6. क्लास 6 में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं. सो वी आर राइटिंग number of students in class 6 is 20. Next question is number of students in class 9 is more than class 8. पहले हम 9th के students देखेंगे 100 students हैं और 8th में देखेंगे 80 students हैं. राइट, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और हमें मिल जाएगा आंसर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दिस इज क्लास 6. सो वी हैव रिटन क्लास 6 हैज minimum number of students. And next question था class 9 has maximum number of students क्योंकि class 9 के 100 students हैं सबसे ज़्यादा. right? And class 6 has minimum number of students which is 20. इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस इज माइनस किया और क्या आ गया आंसर? 80. सो इस तरह से हमने ग्राफ को ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस के आंसर कैलकुलेट किए. एक और ग्राफ देखते हैं. इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है? इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ इस ग्राफ से हमें पता चलता है कितने स्टूडेंट स्कूल बस से आते हैं? 450. कितने स्टूडेंट्स कार से आते हैं? 150. ट्रेन से 200. वॉकिंग 300 एंड साइकिल से कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 100. अब इस ग्राफ को रीड करके हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो बाय कार? यू विल गेट द आंसर 150 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ट्रैवल बाय बस एंड कार? तो सबसे पहले हमने देखा बस से 450 स्टूडेंट्स आते हैं और कार से 150 स्टूडेंट्स आते हैं. तो इन दोनों को ऐड किया हमने एंड वी गेट 600. Next question is which mode of transport is
मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, बस. सो वी आर राइटिंग bus is the most commonly used mode of transport. Last question, which mode of transport is least used? सबसे कम, cycle, right? So we say cycle is the least used mode of transport by students. Got it? Now we come to exercise. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबुलर फॉर्म में टेली मार्क्स बनाने हैं, राइट? तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया 116, 117, 118, देन 119 है, 120 भी है, 121, 122, 123, 124 एंड 125. तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले उसकी टेली मार्किंग बनाएंगे और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, राइट? एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द क्वेश्चन ऑफ पिक्टोग्राफ. You have to draw the pictograph showing the number of women using certain brand of cosmetic. So यहाँ पर 2006 में 5000 women थी, 2007 में 7000 women, 2008 में 8000 women and 2009 में 10,000 women. अब एक कोई भी कॉस्मेटिक ले लेंगे आप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर, एंड 1000 women को रिप्रेजेंट करेंगे एक कॉस्मेटिक. यू कैन टेक वुमेन. वन वुमेन मीन्स 1000 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ओके, सो जहां पर 5000 है, यू आर गोइंग टू मेक 5 वुमेन, एंड फॉर 7000 यू विल मेक 7 वुमेन. ओके, एंड देन 8 फॉर 8000 एंड 10 फॉर 10,000. गॉट इट? इन दिस वे वी हैव अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर आपने पहले इस टेबल से बार ग्राफ बनाना है एंड यू विल solve these questions. In which subject are the maximum marks obtained? That is science. And in which subject does the student need to improve? सबसे कम marks किस subject में है? English and Hindi. And after that, what is the difference between the maximum and minimum marks? So 91 minus 65 will be your answer. Got it? इसी तरह एक और pictograph बनाना है. राजेश went to a store and picked up some stationery item. तो उसने बॉल पेन पिक किए 7, 10 erasers, 5 sharpeners, 6 scales and 12 pencils. You have to represent it with the help of pictograph. So children, all these questions are exactly based on what we have learned in the class. आपने enjoy किया? अच्छे से अपनी नोटबुक पर अपनी बहुत अच्छी से पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे. मेक श्योर जब भी आप पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ बना रहे हैं, आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा रूलर होना चाहिए, एंड व्हेन यू ड्रॉ इट प्लीज पुट इट ऑन अ फ्लैट एरिया सो दैट द पिक्चर्स कुड बी ड्रॉन वेरी क्लियरली. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं. गुड बाय.